In this session, the discussion would be on the artificial intelligence, which is called to be as or abbreviated to be as AI. Or in Hindi, it is called Kritim Buddhimata. Kritim Buddhimata, it is called, and we will see the all the concepts of this artificial intelligence, and in the discussions also, in the further sessions also, we will discuss all details about all things about the artificial intelligence. So what is artificial intelligence? If we'll start with what artificial intelligence, which is called AI, artificial intelligence that is resembles with nowadays every field or every specialization basically. And if you will see about the computer sections also, if you will see about the computer engineering also, then we'll see that the computer engineering and information technology also, IT also, then we'll see in every field, either in electrical engineering, either in electronics engineering, either in mechanical engineering, either in civil engineering, wherever, in any of the either humanistic engineering or something social engineering, and humanistic point of view, or what like either in any application part, commercial point of view, industrial point of view, everywhere this artificial intelligence is a what used and utilized. So what is now the artificial intelligence is? Artificial intelligence basically deals with what are specialized, and what basically deals with the computer applications and computer engineering, which enables machine to perform tasks that normally require what human intelligence. और इट इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन इंटेलिजेंस. जैसे मानव की बुद्धि होती है, जैसे मनुष्य की बुद्धि होती है, ठीक उसी तरीके से मशीन्स का बनना और कोई एल्गोरिथम्स चल करके और एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तरफ, लाइक एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द परफॉर्मेंस ऑफ सम इनपुट टुवर्ड्स टू गेन सम आउटपुट दैट हैज़ टू बी डन. सो व्हाट इज दीज टास्क इंक्लूड्स, कौन कौन से टास्क हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? तो दीज टास्क आर व्हाट? लर्निंग, सीखना, learning, and then problem solving, how to solve the problems. That is also our task or the performance criteria of what? Artificial intelligence. Reasoning, tark vitark karna bhi somehow seems to be what? Artificial intelligence. And like speech recognition, kisi आवाज को पहचानना, image recognition, any kind of this kind of recognition is also done with what? Artificial intelligence. Vision processing, any kind of visualization processing, that is also what that is also the tasking of what? Artificial intelligence. And decision making here means कोई निर्णय लेने की क्षमता. So decision making is also somehow seems to be the tasking behavior of what? Artificial intelligence. And the learning, problem solving, reasoning, speech recognition, image recognition, and vision processing, and somehow the decision making, that is also a part of the artificial intelligence. And we'll see like what the types of artificial intelligence generally, if you'll see, then something will say narrow AI, or something like general AI and super AI. If specified and designed and manufactured for some special task or a specified task, like that is called somehow narrow AI, or ekdam fixed AI for some specific or for some special or particular work. So like Siri and like Google Translate and like chatbots we will see the basic what the chatting behavior, what we are asking and then answer is coming. So this is also what the chatbots like. In every field, in every marketing step also we'll see the chatbots also. So Siri, like if you speak something and then the result is getting to be displayed. So this is what a kind of a narrow AI. And what next is general AI. It means that can think. Strong AI, it is also somehow called. Narrow AI is sometimes called to be as the weak AI, or narrow AI is called for a particular reasons or a particular task or work. This narrow AI that has to be designed or manufactured. What is general AI? Like for strong AI, or can think and learn like a human, and still it is this a concept, this general AI concept is still in research. ये अभी भी शोध चल ही रहा है इसमें. और लाइक एग्जांपल, अ रोबोट दैट कैन लर्न एनी टास्क लाइक अ ह्यूमन. कोई ऐसा रोबोट जो हो जो ह्यूमन की तरह टास्क कर ले, बिकॉज नाउ इट इज द रोबोटिक्स इज सीन इन व्हाट
हॉस्पिटैलिटी ऑल्सो, आजकल तो जो भी होटल में खाना वगैरह देने के लिए भी रोबोट्स यूज़ होते हैं, आर्मी में होते हैं, और आजकल तो जो भी आर्मी में यूज़ हो रहे हैं रोबोट्स, ड्रोन्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, दिस ऑल काइंड्स ऑफ रोबोटिक्स, पूरे रोबोट हर जगह पर रोबोटिक्स को भी यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ IoT, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ IoT विच इज़ कॉल्ड, yes, which is also called what, Internet of Things. This is also a kind of some IoT. So what is super AI? One more thing is super AI. So which is beyond what human intelligence. Everything is having its super version. So like we studied also in conductors, materials, superconductors, super materials. Like also here the machinery which is dealing with the artificial intelligence, or this is beyond what human intelligence. That is seems to be what the super AI that can outperform humans in creativity. कोई भी अच्छाई करने के लिए, क्रिएट रचनात्मक कुछ करने, रीजनिंग तर्क वितर्क करने के लिए, एंड इमोशंस एंड लाइकवाइज. Still it is still like a fiction, and it is the more research which is going in this super AI. And what is now the branches of the AI? If you see the branches of the AI, अगर branches देखें तो क्या होगा, machine learning. It is called ML, machine learning. What is machine learns from the data? What is the purpose of the machine learning? Machine learns from the data, and like example Netflix recommendation and everything, every algorithm, every kind of models, every kind of data models, every kind of machine models, if we are going to perform, that is what a machine learning, because some machine is going to learn and then gives the output for some input, that gives some response. So machine next branch is what, deep learning. Deep learning is also is a special, or the part of what is a what subcategory of what, artificial intelligence. So what is the purpose? Uses neural networks like human brain. Now what is here the neural networks? Neural network which seems to be like a biological neural network or artificial neural network. It is sometimes called to be as BNN and ANN. So what is biological neural network? Like a human mind. It means human mind and human brain is consisting of thousands, billions and trillions of what, neurons interconnected parallelly, or parallelly interconnected, so that all the signals, all the information that is manipulated, that is what processed in terms of electrochemical signals for some stimuli reference, for some response. So deep learning is also some kind of neural network. So what is neural network? This is a biological neural network of which is resemble like a brain, which is brain. Brain is a biological neural network, human brain. But if suppose we are designing any machine, any models, any machine models to perform some task, then that is a replica of, that is a what, copy of what, a biological neural network like a human mind, a human what, brain. So first we will train the what, that model, that machine model, and then the training data would be there, then testing data would be there, and then some output we can require, we can get from that trained machine model. सो दिस इज़ अ डीप लर्निंग एंड लाइक फेस रिकॉग्निशन. अब चेहरे की पहचान करनी है, कोई फेस, सुबह जाते हैं बायोमेट्रिक लगाते हैं, इन मैनी ऑफ द ऑफिस लाइक अ बायोमेट्रिक वाज देयर, और एनी वेयर देयर इज़ अ व्हाट नीड ऑफ द फेस रिकॉग्निशन, की चेहरा पहचानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो दिस इज़ व्हाट ब्रांच. सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो अ व्हाट, अ काइंड ऑफ व्हाट, artificial intelligence. In short, it is called NLP, means natural language processing. So what is the purpose? To understand human language. So this will understand the human language like ChatGPT and all. ChatGPT and like Meta AI and all. So this was a kind of what, learning. This was a kind of what, interpretation by a human language to give some output, to give some response. That is comes under what, natural language processing, which is also a part of artificial intelligence, AI. Computer vision like understand images, videos, like self-driving cars also. The cars which are driverless. So it means that this is also a kind of what, automatic cars, automation. It is going to what, it is going to introduced in what, introduced with the help of artificial intelligence, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और the intelligence which is self-regulatory or automotive. सो इसी तरीके से जो भी होगा, जो भी व्हीकल है, व्हीकल कैसा है कि विदाउट एनी ड्राइवर, विदाउट ड्राइवरलेस व्हीकल. सो इट इज़ व्हाट. सो रोबोटिक्स डेफिनेटली इज अ ब्रांच ऑफ व्हाट, artificial AI.
and intelligent machines is the basic purpose and humanoid robots because the robots which is just working as a humans, जैसे मनुष्य काम करते हैं वैसे ही रोबोट्स भी काम करते हैं, वही काम करते हैं जिसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे टू व्हाट टू मेक द मोर व्हाट टू मेक द व्हाट पार्टिसिपेटरी बिहेवियर लाइक अ ह्यूमन जैसे करते हैं वो. एक्सपर्ट सिस्टम्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ AI लाइक हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, कोई भी निर्णय क्षमता निर्णय लेने में हेल्प करते हैं. और एग्जाम्पल इज लाइक टेक्निकल डायग्नोसिस सिस्टम, एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल डायग्नोसिस सिस्टम, मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम. दिस इज वॉट ऑल अबाउट द ब्रांचेज ऑफ द AI. सो वट इज हाउ AI वर्क्स. अब AI वर्क कैसे करता है, लाइक AI यूजेज द फॉलोइंग स्टेप्स लाइक डेटा कलेक्शन, ट्रेनिंग. पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर ट्रेंड करेंगे किसी भी मॉडल को, जिसका जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन बना रहा है किसी काम को करने के लिए, पहले डेटा इकट्ठा कर लेंगे कि क्या क्या इनपुट में रखना है, और फिर ट्रेन करेंगे मशीन को कि ऐसा करेंगे तो ये करना, वाया कोडिंग, किसी भी कोडिंग के थ्रू करेंगे. एंड देन पैटर्न रिकॉग्निशन होगा कि कैसा पैटर्न रिकॉग्निशन है, और फिर प्रिडिक्शन और डिसीजन होंगे कि डिसीजन होगा. और प्रिडिक्शन मीन्स अनुमान करना, प्रोबेबिलिटी जाहिर करना कि ये संभावना है, ऐसा है, आउटपुट ऐसा आ सकता है. कोई इनपुट दिया तो उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से मशीन ट्रेन की गई है, मशीन मॉडल तैयार किया गया है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उस हिसाब से आउटपुट रहेगा. सो ये इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस और द डिसीजन मेकिंग बिहेवियर ऑफ व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब इसमें क्या होगा कि जैसे एप्लीकेशंस ऑफ AI भी है. सो व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक हेल्थ केयर मतलब जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहाँ पे कि डिजीज़ प्रिडिक्शन है, रोबोटिक सर्जरी, आजकल तो रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से भी इट इज़ गोइंग टू व्हाट परफॉर्म्ड, लाइक दिस इज हेल्थ केयर फील्ड. लाइक एजुकेशन, सेल्फ स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशंस वर देयर, मैनी चैटबोर्ड्स वगैरह एंड ऑल देयर. फिनेंस, fraud detection, automated tracking and all. Trading, automated trading was there, many fraud detection were there. So any kind of what firewall and activation were there, like in field of finance. So this is what application of artificial intelligence. Like a transportation, self-driving cars, self-driving vehicles were there in the transportation also. Agriculture, crop monitoring. अब जैसे crop monitoring है तो how it will do via drones and all, ड्रोन उड़ा करके और जैसे कैमराज वगैरह को ओवरवॉच करा के कि फसल कैसी खड़ी है नहीं है, पक गई है नहीं, किस प्रकार से, जहाँ वेर एवर देयर वुड बी अ हाईली डेंस एग्रीकल्चरल फील्ड, जहाँ बहुत घने एग्रीकल्चरल फील्ड होंगे कि जाना कैसा है, किस तरीके से है. और तो ये जो है कि एग्रीकल्चरल में क्रॉप मॉनिटरिंग करवा सकते हैं. एंड देन स्मार्ट इरीगेशन वर ऑल्सो देयर. एंड वाया व्हाट सम टेलीमेट्री मीन्स. तो कोई भी चीज़ अगर टेलीमेट्री मीन्स से हो रही है, जैसे पावर प्लांट्स है, जैसे कोई भी प्लांट है अगर यहाँ से चला रहे हैं, लाइक स्कैडा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, and like PLC, that all comes under what, they are all getting to absorb like a artificial intelligence के साथ अटैच हो जाते हैं. कोई भी ऑटोमेशन सेक्टर जो होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रहता है. डिफेंस, ड्रोन्स एंड ऑल, लाइक सर्वेलेंस, कोई चीज़ को सर्वेलेंस करना रहता है. एंटरटेनमेंट लाइक गेमिंग हो गया और गेम्स वगैरह, एंड लाइक वॉइस असिस्टेंस, इस तरीके से भी दैट ऑल्स व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द AI. नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेजेस. What is the advantages of AI? फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है. और ऑटोमेशन रिड्यूसेस ऑब्वियसली टाइम, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड वर्क ऑल द टाइम्स 24/7 विदाउट एनी फैटीक, मतलब थके हुए बिना थके हुए. इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे जो ऑल द टाइम्स अवेलेबिलिटी भी रहती है, और एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट भी है कि कई सारी चीज़ों में मोस्टली एक्यूरेट और व्हाट कंसिस्टेंट, लगातार निरंतर इनपुट डाल के आउटपुट मिलते रहते हैं. और हैंडल्स लार्ज डेटा, इट में हैंडल व्हाट पैरेलली many kind of a bulk and bunch of data at a time interparallelly with what least span of time. ऐसा होता है. अब कुछ ना कुछ चैलेंजेस और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं कि जो अभी येट टू बी इन रिसर्च के कैसे उसमें और एडवांटेजेस करें. कि जैसे AI को सीखना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के लिए पहले उसे सीखना पड़ेगा और अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना जो जिस तरीके से जो भी असाइनमेंट्स हैं यानी जॉब वगैरह जो नौकरी वगैरह हैं उससे डिस्प्लेसमेंट वगैरह का या ऑटोमेशन वगैरह सीखने पड़ता है, वरना इस तरीके से अपडेशन नहीं होने पर जो है चैलेंजेस प्रोड्यूस होते हैं. हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, तो हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट मतलब अब कॉस्ट तो लगती है, इनिशियल कॉस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लग सकती है.
और इस तरीके से रिक्वायर्स लार्ज डेटा एंड कंप्यूटिंग पावर, तो इसमें एफर्ट्स भी लगते हैं। और इसके अलावा जब ट्रेन करेंगे किसी मॉडल को तो उस समय बहुत एक्यूरेटली और बहुत ज़्यादा एट दैट टाइम व्हाट वेरी स्पेसिफिक होकर के, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होकर के, क्योंकि ट्रेन करना है किसी किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी मशीनरी मॉडल्स है, तो किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, आउटपुट लेने के लिए, तो बहुत सही कोडिंग होनी चाहिए। कोडिंग के जितने भी स्टेप्स हैं दैट शुड बी वेरी फाइन एंड इन a very simple interpretized way also. Security and somehow privacy concerns is also seem to be the challenges and regarding the minuses or somehow the disadvantage or the challenges mostly of the artificial intelligence somehow, which is what yet to be what recognized, और कुछ ना कुछ नया इसमें होता जा रहा है। Future of AI is what is the future of AI, like what is the further future scope of the AI? Human like intelligent machines, अब जैसे मानव की तरह, बिकॉज कृत्रिम बुद्धिमत्ता है तो इट वॉज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ऑल्सो। इम्प्रूव्ड पर्सनलाइज लर्निंग, स्मार्ट सिटीज़ एंड ऑटोमेशन, जैसे स्मार्ट सिटीज़ है, ड्रोन्स हैं, कैमरे से लगे हुए, अब कहीं पर भी कोई स्मार्ट सिटी में तो होता है ऐसा ही है, या कहीं पर भी, या फिर कोई भी चीज़ स्मार्ट ऑफिस है, स्मार्ट जगह। अब कहने मात्र के लिए नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स तक के लिए नहीं है, बल्कि क्या होता है कि एक ऑब्जर्वेंस, प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस, प्लस जो है उसमें और भी नया चीज़ें, टेक्नोक्रेसी, नई टेक्नोक्रेसी को, टेलीमेट्री इट वाज देयर। तो इस तरीके से जो है एक एक्टिव इस तरीके से सिटीज़ या एक्टिव विलेजेस जो हैं इसकी कल्पना, और लाइक ऑटोमेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हर एक जो भी एवरी वट, कोई भी जो है पावर प्लांट है या कोई भी इंडस्ट्री है, उसका एक कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम है, जैसे ट्रैफिक लाइट है, वहाँ भी कहीं कंट्रोल रूम है, कुछ हर चीज़ का एक कंट्रोल रूम हो सकता है। तो कंट्रोल रूम जब होता है, जैसे अगर राउटर वगैरह बिछा रखे तो उसके लिए भी एक जगह पर सारी लेन कनेक्ट कर रखे तो एक कंट्रोल रूम होता है, जहाँ से सर्वर रूम होता है। तो इस तरीके से एवरीवेयर देयर वुड बी अ व्हाट कंट्रोल रूम। तो वहाँ से कैसे चल रहा है, क्या ऑटोमेशन है। अब सब मान लीजिए कि कोई प्लांट यहाँ पर किसी बॉयलर में पानी कम ज़्यादा करना है, लेवल घटाना बढ़ाना है, या स्टीम जनरेट हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, या टैपिंग करनी है, टोंटी खोलनी है, बंद करनी है। जो टैप होता है मतलब जो नल टंकी की जो टोंटी होती है, जो फिर उसको खोलना है, ऑन या ऑफ करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि वेल्व को, जिसे वेल्व इंग्लिश में कहते हैं, वेल्व को ऑन और ऑफ करने के लिए 1-2-5 किलोमीटर दूर जाएंगे, तो स्कैडा सिस्टम यूज़ होता है। देयर ऑल्सो द AI is getting to be used. So either in the industrial sector, either in the core technical whatsoever, in any field, electrical, electronics, mechanical, civil, in any of the fields, this highly artificial intelligence that has to be of great recognition nowadays. What would be the summary? What would be the gist of this? The AI makes machines intelligent so that they can think, सोच सकें मशीनें, और they can learn, सीख सकें, और they can make decisions like what the human as the human does. So अगर देखें इसको समरली, if we'll see about the AI, then कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर जो विज्ञान इंजीनियरिंग है उसकी एक शाखा है, जिसमें मशीनों को इस तरह बनाया जाता है कि वे मनुष्य की तरह सोच सकें। क्योंकि आजकल तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता हर जगह की एक शाखा है, हर जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता लग रही है, लेकिन नॉर्मली जो है कंप्यूटर कोडिंग वगैरह इसमें बहुत होता है, और इसमें जो है मॉडलिंग्स होती हैं, तो मॉडलिंग्स में कंप्यूटर कोडिंग को करते ही हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए करते हैं, जिसमें जो मशीनें हैं उनके लिए क्या करते हैं, इस तरीके से निर्मित या बनाया जाता है कि वो मनुष्य की तरह सोच सकें, सीख सकें, निर्णय ले सकें, और समस्याओं का समाधान कर सकें। और जैसे गूगल सर्च है, चैट जीपीटी है, फेस लॉक, इस तरीके से यूट्यूब है। यूट्यूब क्या है, पूरा एक एल्गोरिथम में चलता है। तो जितने भी ये नाम ले रहे हैं, गूगल सर्च, चैट जीपीटी, दे आर रनिंग इन सम एल्गोरिथम्स। तो किसी न किसी एल्गोरिथम मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी भी चीज़ का, कि इनपुट कैसे आउटपुट जो भी चाहिए वैसा मिलेगा, लाइक इस तरीके से। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रकार है कि संकीर्ण AI है, जो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए ही बनाया जाता है, जैसे चैट बोट्स है, गूगल मैप्स है। अब गूगल मैप्स में क्या होता है, डायरेक्शन ही पता चलती है, हालांकि और भी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली वो है तो डायरेक्शन ही पता करने के लिए गूगल मैप्स। और ऐसा चैट बोट है, चैट बोट किसी चीज़ को पूछ रहे हैं तो आंसर मिल रहा है, जिस भी एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं। एलेक्सा में बोल रहे हैं तो बोल के पता चला, सीरी। और इस तरीके से जो सामान्य AI है, ये भी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रकार है। जनरल AI जिसे बोलते हैं, जिसमें इंसान जैसी सोच और सीखने की क्षमता होती है।
अभी शोध के स्तर पे है, ये सब जनरल और सामान्य एआई है। और जैसे ऐसा रोबोट जो हर काम कर सके, इसका एक उदाहरणार्थ अगर देखेंगे तो ऐसा है। सुपर एआई क्या है? सुपर इंटेलिजेंस है, इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान है, निर्णय और कला और इस तरीके से इमोशंस वगैरह सभी में श्रेष्ठ है। और अभी केवल जो है एक सैद्धांतिक और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में जो है वो है, निर्णय कला भावना इस तरीके से सब में जो है श्रेष्ठ। इस तरह से सुपर कंप्यूटर ऐसे सुपर इंटेलिजेंस अगर देख सकें तो है। सो लाइकवाइज तो अभी ये जो है इन प्रोग्रेस ही है। अब एआई की प्रमुख शाखाएं मशीन लर्निंग है, डेटा से सीखना, और उसके बाद डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क से सीखना, एनएलपी मतलब इसको बोलते हैं प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण। तो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण है, उसको भाषा समझना। और इसके बाद जो कंप्यूटर विजन है, मीन्स चित्र या वीडियो पहचानना, और रोबोटिक्स मतलब बुद्धिमान मशीनों का ऐसे निर्माण जो होता है वो रोबोटिक्स कहलाता है। और एक्सपर्ट सिस्टम मीन्स जो विशेषज्ञ ज्ञान आधारित, विशेषज्ञता के जो मर्माहूत होकर के जो विशेषज्ञ जो मर्म के साथ जो है ज्ञान आधारित जो भी निर्णय है, उसके लिए क्या होता है, ये एक्सपर्ट सिस्टम है। तो एआई का काम कैसे काम करते हैं? तो हाउ द वर्क फ्लो ऑफ द एआई, व्हाट इज़ द प्रोसीजरल वर्क फ्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एआई। की डेटा को पहले इकट्ठा करो, फिर डेटा से सीखो, पैटर्न पहचानो, निर्णय लेना या भविष्यवाणी जो है करना, इस तरीके से प्रिडिक्शंस करना, और जो जिसे कहते हैं फोरकास्टिंग, फ्यूचर फोरकास्टिंग या फिर प्रिडिक्टिव एनालिसिस या फ्यूचर फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शन ऐसे भी बोलते हैं, करना। तो इस तरीके से डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं। उनमें एआई के माध्यम जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, चाहे वो मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स हो, ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स हो, नियो एल्गोरिथम्स हो, क्लासिकल, मोस्टली जो जितने भी सारे के सारे एल्गोरिथम्स हैं, दे ऑल आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्टली एल्गोरिथम्स और द पार्ट ऑफ सम मशीन लर्निंग ऑल्सो। तो इस तरीके से है। तो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई ऑल्सो। इन फर्दर जो है सेशंस विल ऑल्सो डिस्कस द मशीन लर्निंग एज वेल। एआई के जो उपयोग हैं, एप्लीकेशन है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट लर्निंग है, चिकित्सा है, रोग पहचानना, रोबोटिक सर्जरी करना, आजकल तो रोबोटिक सर्जरी भी है, और कृषि, और इस तरीके से ऑटोमन डिजीज़ और बहुत सारी अनेकों प्रकार की डिजीज़ को पहचान लेना रोबोटिक सर्जरी है। जहाँ कंप्यूटर के एप्लीकेशंस आ गई और जहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता इन्वॉल्व हो गई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इलेक्ट्रिकल में है, रिसर्च में बहुत सारा काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और नई नई शोध को करने में, क्योंकि हर एक एल्गोरिथम्स का क्या होता है, एक तय पैटर्न होता है, एक बिहेवियर होता है। अब एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, इट इज़ ऑल्सो समथिंग काइंड ऑफ व्हाट नेचुरल एल्गोरिथम्स, मतलब किसी न किसी के बिहेवियर पे बेस्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वुल्फ एल्गोरिथम है, फॉर एग्जांपल पार्टिकल स्वैम एल्गोरिथम, पीएसओ एल्गोरिथम है, फॉर एग्जांपल जेनेटिक एल्गोरिथम है, फॉर एग्जांपल कोई भी एल्गोरिथम, आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन है, एनी काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स, फॉर एग्जांपल हार्मनी सर्च एल्गोरिथम, फॉर एग्जांपल टीचर लर्निंग एल्गोरिथम, बहुत प्रकार के एल्गोरिथम, चाहे वो ह्यूरिस्टिक हो, मेटा ह्यूरिस्टिक हो, नई एल्गोरिथम्स हो, हाइब्रिड एल्गोरिथम्स हो, किसी प्रकार के एल्गोरिथम्स हो जिनके आधार पर एक फ्लो। अब जैसे रैबिट एल्गोरिथम तो रैबिट के आधार पे, जैसे ग्रे वुल्फ एल्गोरिथम है तो वो किस तरीके से वुल्फ एक काम करता है, उसका क्या बिहेवियर होता है, अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें जो है कि जो नेचर बेस्ड एल्गोरिथम है, कि कोई किसी पे एल्गोरिथम है, कोई किसी पे एल्गोरिथम है, कोई जेनेटिक बेस्ड है तो उसमें कैसे म्यूटेशन होता है, क्या रिप्रोडक्शन है, और ठीक पार्टिकल स्वयं एल्गोरिथम है। कोई अगर हार्मनी सर्च एल्गोरिथम, तो हार्मनी सर्च एल्गोरिथम जो है वो म्यूजिशियंस के इम्प्रोवाइजेशन पे है, कि कैसे म्यूजिक की जो नोट होती हैं, जो धुनें होती हैं, उनको तय किया जाता है, उससे आउटपुट निकाला जाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेकर के ऐसे एल्गोरिथम में अप्लाई करके, सब मशीन लर्निंग है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये सब अप्लाई करके आउटपुट लेना और फिर उसको अप्लाई कर देना, अप्लाई जहाँ पे भी करना है। तो ये दिस थिंग, अब जैसे कृषि में थे तो स्मार्ट खेती, फसल विशेषज्ञता, बैंकिंग में है तो धोखाधड़ी पहचानना, डिजिटल लेन देन, और जब इस तरीके से है स्पैमिंग को पहचानना, कौन सा मेल कैसा है, कौन सा ईमेल सही है कि क्या है, कि फर्जी फ्रॉड तो नहीं है, इस तरीके से। सेना, ड्रोन या सुरक्षा, अब ड्रोन करना सुरक्षा के लिए आजकल सेना में जो है, अब जैसे रोबोटिक्स भी लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे बोलिए रोबोटिक्स खड़े रहेंगे सुरक्षा में, सज्जता में, ऐसे सेना में भी हो सकता है। आया वैसे आए दिन जो है इस तरीके के रिसर्च तो हर क्षेत्र में रोबोटिक्स के लिए चलते ही हैं। तो इस तरीके से परिवहन मतलब क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार, और सेल्फ ड्राइविंग कार जिसमें ड्राइवर नहीं है, तो ये सब परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में भी है। मनोरंजन जो है, जैसे गेम्स वगैरह खेलने में, लैन गेमिंग है, आपस में समझ ले रहा है मशीन, और जैसे लूडो वगैरह भी खेलते हैं,
जैसे फ़ोन में खेलते हैं तो क्या होता है, अगर डिफ़ॉल्ट खेलते हैं, अगर इंडिविजुअली खेल रहा है कोई सिंगल खिलाड़ी के साथ तो कंप्यूटर के साथ खेल रहा है, या फिर जो सिस्टम ऑलरेडी समझाया हुआ है, तो वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है कि पहले से ऐसा करेंगे तो कोई और स्टेप देखेगा, फिर जो यूज़र है वो करेगा, फिर उसके अगले वर्सेस पे आएगा। तो इस तरीके से दिस इज़ व्हाट वॉइस असिस्टेंट, वॉइस को पहचानना, वॉइस को रिकॉग्नाइज करना, इमेज प्रोसेसिंग, इमेज रिकॉग्निशन जैसे बोलते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन, किसी भी तरीके की पहचान है, प्रोसेसिंग है, कोई नया आउटपुट है, कोई न्यू इन्वेंशन है, दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ व्हाट ये उपयोग एप्लीकेशन की उपयोगिता है। एआई के लाभ क्या है कि तेज सटीक निर्णय है, फटाफट 24/7 जो है बिना थके, बिना जो है फटीक के जो है काम करता है, विदाउट एनी लेथार्जिसिटी, मतलब जो आलस्यपन है उसके बिना फटाफट जो है इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है आंसर मिलता है, जटिल कार्यों को आसान बनाता है और बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर लेता है। तो इन अ बल्क डेटा इज गेटिंग टू बी प्रोसेस, देन डेफिनेटली द टाइम वुड बी लेस, फटाफट टाइम मिलेगा और फिर उसमें और थिंकिंग करके और ऑटोमेटिक भी, मैनुअल भी, एकदम जो भी चीज़ें होंगी वो दैट वुड बी मोर परफेक्ट एज वेल। सो एआई की हानि कुछ, अब जैसे कई बार क्या होता है कि अपडेशन मांगता है, नहीं होती है तो बेरोजगारी बढ़ सकती है, नैतिकता कई बार, अब जैसे क्या होता है कि ठीक है जैसे चैट जीपीटी बनाया है वो दैट इज़ वेरी फाइन, वो यूज़ ही करने के लिए बना है। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी टेक्निक है, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्कुल प्रयोग लेने के लिए ही बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से जो है आराम से जो है किसी भी चीज़ को आराम से पूछा जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया। मेटा एआई है, बहुत सारी चीज़, क्योंकि चैट जीपीटी, मेटा एआई, यूट्यूब, दैट इज़ हैविंग अ ह्यूज डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस उनका बहुत बड़ा होता है, डेटा क्लाउड बड़ा होता है, जैसे डेवऑप्स वगैरह डेटा क्लाउड के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से देयर वुड बी अ मोर डेटा, व्हाट देयर वुड बी अ मोर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ these things, these what utilities or these fields, these things। सो इसीलिए जो है कि ज़्यादा जगह से, अब जैसे कोई चीज़ सर्च करें तो बहुत सारी जगह से इकट्ठा करके एक जगह पर दे देंगे, तो फिर अब उसमें फर्दर सर्च करें, किताबों से देखें, जर्नल से, रेफरेंसेस से, आर्टिकल से, इधर से उधर से, बहुत सारी जगहों से, फिर तो कितना कुछ एकदम नया और एकदम सोच के लिए बहुत सारे मैटर्स आ जाते हैं और एकदम से जो है वाइब्रेटिंग होता है। इसके बाद एआई की हानियाँ क्या है कि विकास और रखरखाव भी थोड़ा महंगा है, कि अब जो है कि पैसे वगैरह भी लगते हैं और इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा है, क्योंकि डेटाबेस ज़्यादा है। डेटाबेस रखने के लिए फिर डेटा क्लाउड्स लेना पड़ सकता है, जैसे डेवऑप्स वगैरह में सीखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है कि क्लाउडिंग, डेटा क्लाउडिंग मतलब ये होता है कि अगर ज़्यादा डेटा है तो डेटा के लिए फिर मेमोरी लेनी पड़ेगी, ज़्यादा इतने डिवाइसेस लेने पड़ेंगे, किसी तरीके के एक्सटर्नल इंटरनल जो भी है। तो कहाँ इतना, अगर डेटा कहीं चाहिए कि कोई कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी है, कोई फर्म है, किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, कोई ऑफिस है, कोई भी चीज़ है, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, टेक्निकल है, मेडिकल है, कुछ है, बायोमेडिकल है, कुछ क्यों ना है, और लीगल है, कोई भी क्यों ना है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एजुकेशनल है, तो अगर चाहिए, मान ले कोई डेटा इधर उधर चाहिए, तो फिर तो वो सब सारा सिस्टम अपने साथ ट्रांसपोर्ट करना ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है डेटा क्लाउड्स को बना लेते हैं कि डेटा क्लाउडिंग्स के जरिए डेटा को रख लिया जाता है, जहाँ जहाँ पर चीज़ें होती हैं वहाँ एक्सेस करवा लिया जाता है। तो इसके लिए पैसे लगते हैं, हर समय के जो भी चार्जेस होते हैं, महीने में, जिसने मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जिस तरीके से भी जिसका है वो होता है इनफैक्ट। तो इसीलिए जो है तो कहीं ना कहीं जो है साइबर सुरक्षा है, प्राइवेसी वगैरह, ये भी चीज़ों का थोड़ा चुनौतियां रह सकती हैं, कि जो भी अभी नई नई चीज़ें बन रही है। भविष्य में क्या एआई का है, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट चीज़ें हैं और एक्टिवनेस है और नयापन और टेक्नोक्रेसी है, ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक आधारित भी चीज़ें हैं, और साथ में ऑटोमेटिक के साथ मैनुअल भी है। पूरी तरह स्वचालित वाहन है, खुद से चलने वाले वाहन है, और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर शिक्षाएं, और इस तरीके से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल सकता। उन्नत रोबोटिक्स है, ड्रोन्स के माध्यम से चीज़ें पता करवाई जाती हैं और ऊपर से जाते हैं, और जैसे उड़ते हुए हवाई जहाज जाते हैं, इधर से उधर चीज़ें भी ले जाते हैं, वो अपने नीचे ड्रोन्स लगा रहा है और वो देख रहा है कि कहाँ क्या क्या घटित हो रहा है, और इससे जो है सुरक्षा भी घटित कराई जाती है। जैसे अभी जैसे जम्मू कश्मीर में इतना हादसा हो गया, इतने आतंकवादी आ गए जंगलों से भाग करके, है ना, इतने ज़्यादा लोग आ गए, तो ड्रोन्स वगैरह के माध्यम से। और जैसे अभी दिल्ली में इतना आतंकवादी घटना घटित हो गई, तो एकाएक हो गई। तो टेक्नोलॉजी, इट इज़ मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो इन सब चीज़ों को जो एकाएक घटित हो रही हैं और पता नहीं जो है अब जिस भी रूप से हैं, अगर घटित हो रही हैं तो इनको डायग्नोस एड्रेस किया जा सकता है। शिक्षा और उद्योग में बढ़ावा देना, और शिक्षा में जो उद्योग में बढ़ावा मिलना,
तो इसलिए सुरक्षा है, स्वास्थ्य है और शिक्षा है, रोजगार है, इन सब चीज़ों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत चल रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इस तरीके से फैब्रिकेशन और डिज़ाइनिंग और लाइक एम्बेडेड सिस्टम, इस तरीके की चीज़ें भी तब ज़्यादा डेवलप होती हैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नैरोनेस, छोटा बनाना चीज़ों को, जैसे ओपन, जैसे विच इज़ कॉल्ड टू बी एज द सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आजकल चल रहे हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी मतलब यही है कि चीज़ों को जोड़ जोड़ के पैसा बनाना और मनी जनरेट करना, और इस तरीके से जो है इकोनॉमिक चीज़ों को बनाना, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, कि जो वेस्ट है वह भी पैसे में कन्वर्ट हो, वेस्ट जो है वो वेल्थ में कन्वर्ट सिर्फ बातों में ही ना हो बल्कि हो भी, इस तरीके से बनाना, ये सब चीज़ें हैं। तो बाकी क्या है कि एक लाइन में अगर देखें कि अगर कुछ वर्ड्सों में कि एआई मशीनों को बुद्धिमान बनाता है और वे मानव की तरह सोच और निर्णय ले सकें, इस तरीके से बनाता है। तो सेम चीज़ है, द सेम थिंग गोज़ विद व्हाट की लाइक, अब इसमें बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, अगर कार्य के आधार पर एआई को देखें तो रिएक्टिव मशीन्स हैं, लिमिटेड मेमोरी वाले हैं, थ्योरी ऑफ माइंड्स हैं और सेल्फ अवेयरनेस है कि रिएक्टिव मशीन केवल वर्तमान स्थिति पर प्रतिक्रिया कर, जैसे स्टिम्युलाई तैयार करना, और उसके बाद लिमिटेड मेमोरी पिछले डेटा को याद कर सकता है इस तरीके से, और थ्योरी ऑफ माइंड भावों को यानी इमोशंस को समझ सकेगा, और सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद को समझने की जो क्षमता है वो, इस तरीके से जो है, तो दिस विल वर्क एज अ व्हाट, यस। अब अगर मशीन लर्निंग, अगर इसका देखें सब कैटेगरी मशीन लर्निंग का नेक्स्ट सेशन में या कोई भी और सेशन में अभी बनेगा। मशीन लर्निंग में देखें तो सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, 3 तरीके से है। तो ये भी इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, इट्स अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई ऑल्सो। सुपरवाइज लर्निंग में क्या है कि अंडर द सुपरविजन ऑफ समवन, ठीक है, अंडर द सुपरविजन मतलब लेबल्ड डेटा से सीखना, लेबल्ड डेटा से सीखना वो सुपरवाइज लर्निंग है। अनसुपरवाइज लर्निंग पैटर्न खोज के सीखना, पैटर्न खोजना, ये अनसुपरवाइज, जिसमें सुपरविजन नहीं है। रीइंफोर्स मतलब किसी विशेष कार्य के लिए फोर्स करना और चीज़ें सिखाना, है ना, तो इसीलिए कहते हैं रीइंफोर्स्ड लर्निंग इसे बोलते हैं। लाइक इस तरीके से जो है कि न्यूरल नेटवर्क को देखें तो न्यूरल नेटवर्क में एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है और एक आउटपुट लेयर होती है। तो इस तरीके से भी जो है न्यूरल नेटवर्क और डीप जो लर्निंग है, डीप न्यूरल नेटवर्क, या फिर समटाइम्स CNN बोलते हैं, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, ये दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें मशीन लर्निंग भी है, जिसमें ANN भी है, जिसमें ANN है, जिसमें CNN है, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। और एआई काम करता है डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, प्रेडिक्शन और इवैल्यूएशन एंड समहाउ इम्प्रूवमेंट। सो इसीलिए जो है कि सो एआई इज़ व्हाट क्वाइट हेल्पफुल। अब जैसे अगर कुछ मीनिंग्स को समझें तो जैसे रिग्रेशन मतलब होता है प्रतिगमन करना, रिग्रेशन मतलब होता है प्रतिगमन, मतलब ये होता है कि अगर किसी डेटा को वापस या निकासी वगैरह, कहाँ से डेटा एग्जिट होगा, कहाँ जाना है, किसी और जगह पे लगना है, तो ये सब रिग्रेशन से तय होता है। कोरिलेशन मतलब होता है सह संबंध आपस में, पारस्परिक रिलेशंस, किसके साथ क्या समन्वय बनाना है, वो कोरिलेशन कहलाता है। किसी एक मॉडल का दूसरे मॉडल से मिला करके, जैसे कोई एक डेटा मॉडल है, कोई एक एआई का मॉडल है, कोई और एक एआई मॉडल, दोनों को मिला के हाइब्रिड मॉडल बन गया, तो किसी और ज़्यादा मल्टीफेरस हो गया, ज़्यादा आउटपुट्स के लिए काम करेगा, ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव्स के लिए मल्टी ऑब्जेक्टिव सिस्टम हो गया है। तो इसी तरीके से विच इज़ कॉल्ड, एक वर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड डायमेंशनल रिडक्शन, इसे कहते हैं आयामी कमी। इसका मतलब अगर जैसे डायमेंशनल रिडक्शन में कोई प्रोसेसिंग के दौरान, अगर जैसे कोई डेटा प्रोसेस हो रहा है किसी भी मशीन मॉडल में के दौरान, उपयोग किया जाने वाला फीचर चयन और डेटा संपीड़न विधियों की एक श्रृंखला है, तो इसे बोलते हैं आयामी। मतलब किसी डायमेंशंस को कम करना, किन्हीं वेरिएबल्स और पैरामीटर्स को कम करना, ताकि कोई और चीज़ें फटाफट हो सकें और जो चीज़ें चाहिए वो हो सकें। जैसे कोई डेटा पैटर्न होता है, बार बार कोई डेटा आ रहा होता है, तो कोई डेटा बहुत दूर आ जाता है, कोई आसपास में आते हैं, तो जो बहुत दूर इधर आ जाते हैं और किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते, तो इन्हें आउटलायर्स कहते हैं। आउटलायर्स को रिकॉग्नाइज करके हटाना, आउटलायर्स को न देखना, तो ये भी एक जो है डायमेंशन, आयामी न्यूनीकरण का हिस्सा हो भी सकता है, होता है इनफैक्ट।
और इसके बाद जो है रीइंफोर्स लर्निंग मतलब सुदृढ़ शिक्षा, अगर रीइंफोर्स करके मतलब फोर्सफुल करके सुदृढ़ीकरण करना किसी कार्य के लिए, अगर लर्न करना किसी मशीन को, तो रीइंफोर्स लर्निंग है। इसके बाद अगर ये है कि सुपरवाइज लर्निंग तो है ही, और जो है लेबल का क्या मतलब है? लेबल मतलब किसी वस्तु को पहचान या वर्णन करने वाला कोई भी चीज़ अगर लगा रखी, जैसे लेबलिंग होती है, लेबलिंग करते हैं तो नाम पत्र लगाते हैं, रेटिंग लगाते हैं, नेम प्लेट, इलेक्ट्रिकल में नेम प्लेट रेटिंग लगाते हैं हर एक उसमें, इलेक्ट्रिकल पे उसमें अप्लाइंसेस में, क्यों, कितने रेटिंग पे, किस वोल्टेज करंट पावर पे, किस में सेल करने जा रहे हैं, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो हर जगह नेम लेबल होता है। कोई डायग्राम बनाते, कोई सिमुलेशन बनाते हैं, कोई कैड कैम बनाते हैं, उसमें लेबलिंग होती है कि कौन सी क्या है, मैप होती है उसमें लेबलिंग होती है, हर एक चीज़ में लेबलिंग। सो लेबल युक्त और लेबल रहित डेटा भी इसमें तब होता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कंबाइनली व्हाट एंड आर्टिफिशियल व्हाट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज़ हेल्पफुल इन व्हाट मैनी ऑफ द एप्लीकेशन विच वी हैव डिस्कस येट। द सेशन विल कंटिन्यू लाइक दिस, एंड दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन।